welcome back. I'm your host Aksa, and today we are going to talk about something very relatable, something that all of us, agree with and essentially are the victims to it. When you wake up in the morning and you're like, okay, I'm just going to take a 5-minute break, scroll Instagram, and you're just there for hours and hours. And you come across that one video where this guy who wakes up or a girl who wakes up at 5 a.m., hits the gym, gets everything done, runs businesses, and it's all done before 9 a.m. And you're just like, wait, hello, am I behind or what? Like, what am I doing wrong? So, you just look at it and that's essentially like, your hustle culture where am I doing enough or am I doing less or am I just doing it for the show? So today we will be talking about all of these things with our very esteemed guest, Rana Zakias, who is also a former alumni, and he owns a marketing agency and owns a cafe in Phase 5 called Chapter 1. Thank you, Zakias, for joining us. Thank you so much for inviting me. Tell about yourself, something. It's fine, वो हम cut करते हैं. अच्छा क्या बताऊँ अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, I'm Rana Zakias. I'm the owner of Chapter 1. मैंने भी LSE से ही अपनी पढ़ाई complete की थी. And today I own Chapter 1, a marketing agency by the name of Ziki Media. We help businesses grow their brands using organic content. And एक ज़माना था आप लोगों की तरह मैं भी इधर ही बैठ के ऐसे ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था. और मज़े की बात ये है कि रील्स वगैरह रिकॉर्ड करना, माइक सेटअप करना, ट्राइपॉड सेटअप करना मैंने इन्हीं से सीखा है while working at Chapter 1. हाँ, she used to do an internship at Chapter 1. Yes. Okay, so let's start simple. When you see hustle culture online, how much do you think it matches the real work and how much is it just for portrayal? काफ़ी हद तक it is for portrayal. अच्छा. क्योंकि देखें कारोबार में what matters is कि if you're moving the needle for your business or not. And the only thing that moves the needle for a business is cash flow. If you have more cash flow, you'll expand faster, you'll hire better people. So cash flow is the only thing that matters in business. तो अगर आपकी जो भी हसल है, मिसाल अगर एक बंदा 4 घंटे काम कर रहा है, एक बंदा घंटा काम कर रहा है, ठीक है, उस घंटे में if he is bring in more cash than this person, तो इसकी सारी ये हसल रूटीन is essentially useless अगर हम इसको objectively देखें. बट ऐसा भी नहीं है कि दिस इज कम्प्लीटली अटर यूजलेस. बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट आई हैड बीन दैट हसल कल्चर गाय. वो जो आप बता रही थी कि wakes up at 5 a.m. and gets everything done by 9. Yeah. It is a vanity metric in my opinion. It satisfies your ego कि अच्छा यार मैं बड़ा प्रोडक्टिव हूँ, ठीक है. बट जहाँ तक बात आ गई कि गेटिंग रियल वर्क डन, that can be done. You just wake up, go to your laptop. You don't need a 3-hour elaborate routine. ठीक है. बट ये चीज़ मैं अब कह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 6-7 साल हो गए हैं काम करते हुए. तो जब मैं हाँ जी sorry, तो would you like say that to someone who's starting young, like a student or a young entrepreneur? मैं exactly वही बात करने लगा था. पर अब मैं अगर वापस जाता हूँ back in time, when I was in my A levels, and I had all of this ambition, all of this energy in me, but I did not know where to channel that energy, that ambition. So at that time I adopted these routines, these self-help morning routines, these productive routines. ठीक है, I didn't get anything done on paper. I didn't make any money or something like that. But those habits did develop a certain level of discipline, a certain level of consistency, that later on helped me a lot. और अब वो चीज़ें एक किस्म की like automatic हो गई हैं. So it's more part of my behavior now rather than me trying to do something by friction. And like with all of that does give you some sort of discipline and organizes things for you. तो मतलब I feel like कि अगर कोई नया कुछ start कर भी रहा होगा तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है essentially अगर हम objectively बात करें. But as far as like how it goes with people like students especially managing all of these इकट्ठे और मतलब कि उनको स्ट्रेस होता है कि यार मैं क्या ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या ज़्यादा मैं नहीं कर रहा, तो what would you say कि उसमें से प्रोडक्टिविटी निकालना, how would you do that? मतलब essentially know that these things are actually giving me some sort of output instead कि मैं उसको uselessly बस कर ही जा रहा हूँ. उसको differentiate करने का क्या metric होगा? कि मैं बस अभी वेस्टलेस एफर्ट कर रहा हूँ और वर्सेस कि am I actually doing something? And like I'm just burning myself out for no reason.
सही। लेकिन जब भी आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं ना, इन दैट मोमेंट यू ऑनेस्टली डोंट नो कि इसका आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ बिगिनर स्टेज में नहीं है, ये बिजनेस में भी है। मैं अगर मिसाल कैफ़े की एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर कोई न्यू मेन्यू आइटम बना रहा हूँ, रेनोवेशंस कर रहा हूँ, इतने पैसे मैं लगा रहा हूँ, न्यू ब्रांच को, आई डोंट सर्टनली नो कि इफ इट विल बी फ्रूटफुल और नॉट। ठीक है, अब अगर आप ये जैसे ये चीज़ों जिन चीज़ों में रिकॉर्ड हो रहा है, एप्पल की अगर आप एग्जांपल ले लें तो स्टीव जॉब्स did a calligraphy class back in his college days और उस टाइम पे उस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप उसको देखते उस टाइम आपने कहना था ये अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। बट दैट calligraphy class taught him fonts and that is why we have the modern day fonts that we have in the phones। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, है इस तरह ही अगर मैं आपको अपनी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जी। जब LSE में हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी ना, तो सपोज अगर आज जैसे मैंने सारा ब्लू पहना हुआ है ना, नेवी ब्लू, तो अगर मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मिसाल हैं ब्लू कलर की थी या रेड कलर की थी, तो आई वुड मैच माई क्लोथ्स विद इट। आई वुड डू मतलब सम सॉर्ट ऑफ थिएट्रिक्स that would go along with the presentation। Yeah. I would rehearse the presentation at least 100 times। ठीक है, I would prepare weeks for that presentation। हाँ ठीक है, नंबर मुझे वैसे भी मिल जाने थे पूरे, बात ये नहीं थी। और उस टाइम पे मुझे लोग कहते थे कि यार तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये क्या फ़ायदा है, मतलब इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन, चिल आउट ब्रो। बट गिविंग दोज प्रेजेंटेशंस बार बार विद all of the effort that I had helped me so much in business meetings, in business deals. Like anytime I give a business presentation, people like you present really well, Yeah. and I attribute all of that that skill From the presentations from the and everything that you presentations। did. हाँ, तो In जब आप FSC. मेहनत कर रहे हो, बस लास्टली मैं बस ये कहना चाहूँगा, तो जब आप मेहनत कर रहे हो उसको आप ये ना सोचो कि यार इसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, बस लगे रहो। और टू आंसर योर क्वेश्चन कि उसको आप चेक कैसे करें, व्हाट सॉर्ट ऑफ लिटमस टेस्ट दैट यू शुड हैव, उसका बेसिकली अगर आप ये कर लो कि यू सी कि अच्छा यार मैं आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। सपोज यू वांट टू गेट फिट में मिसाल है, यू वांट टू लूज वेट एंड यू वांट टू मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सपोज यू वांट टू मेक 5 लाख रुपए अ मंथ Yes, sir. एंड यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। ठीक है, तो ये 3 मैंने गोल कह दिए ना, तो ट्रैक इंडिकेटर्स दैट विल गेट यू क्लोजर टू दिस गोल। ठीक Very है, effective. एंड देन हैव लाइक, जैसे हम बिजनेस में कहते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, तो हैव अ मिनिमम वायबल हैबिट दैट यू कैन डू फॉर दीज। कि अच्छा अगर मैंने वेट लॉस करना है ना, तो मैंने इतनी कैलोरीज क्या मैं डेली खा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने 5 लाख कमाने तो क्या मैं इतनी मीटिंग्स बुक कर रहा हूँ इन अ मंथ। अगर मैंने फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, मैं कितने आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ। See, that's तो a very nice way to put it. हाँ, फिर आप उनको ट्रैक करें कि ये मेरा मिनिमम है, हाँ. एंड देन जस्ट डू एवरीथिंग around that। And since you also own a marketing agency, and आप chapter 1 में you were hiring interns that were usually Gen Z and everything, what do you think उनका किस तरह का work lifestyle है और वो किस तरीके से काम करते हैं? Do you really think कि are they more performative, or do you think they can handle the the culture, maintain that work life balance? What do you think about that? Are there particular indicators or measures that you keep in mind before hiring them कि किस तरीके से आप करते हैं? अच्छा, आई हैव एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह वर्कड इन ऑल ऑफ द सेगमेंट्स। मतलब मैंने सरकारी इदारों में भी काम किया हुआ है। आई वर्क विद वॉल सिटी, ठीक है, आई हैव वर्क विद द गवर्नर, आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट एज वेल। कॉर्पोरेट में आई वर्कड इन द सी स्वीट एज वेल। Yeah. तो एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं आपको बताऊँ ना, कि अब अगर मैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को मैं कंपेयर करूँ जेनजी के साथ, तो जहाँ तक बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस की, आई फील लाइक दे डू इट द बेस्ट। Really? I think you're probably the first person who's saying that to me. नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, दे डू इट द बेस्ट। ठीक है, उनमें वो फॉर्मेलिटी रही है कि यार अच्छा मैं ये ईमेल आगे भेजूँ, मैं ये चीज़ें करूँ। वो जैसे कॉर्पोरेट में एक चलता है ना कि लेट मी आस्क माय टीम लीड, वो ऐसा कोई उनमें सीन नहीं है। तो मतलब they do it. हाँ, काम है, अच्छा करना है। अच्छा, but would you say कि वो they go above and beyond for that? ये अब मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, एंड विच आई इवन ऑफन टेल माय टीम। मतलब मैंने ये देखा, दे गो फॉर शॉर्टकट्स। ऐसा ही है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब मैं प्रेजेंटेशन देता आई यूज्ड टू गो ऑल आउट, मेरी हैबिट आई गो ऑल आउट। दे सी द लीस्ट एफर्ट वाली कोई वे होगी ना, दे विल गो टू दैट।
ठीक है, एंड देन दिल पुट ऑल ऑफ द एफर्ट इन डूइंग द लीस्ट एफर्ट वाला टास्क। तो ठीक है, काम हो जाता है, पर उस तरह से फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं होते फिर वैसे। तो मतलब आप उसको मतलब इतना एफिशिएंट रैंक नहीं करोगे एसेंशियली, है ना? एफिशिएंट तो है, आप कम एनर्जी यूज करके ज्यादा काम देखिए उनके लिए तो है, बट लाइक इज इट बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, इज इट एफिशिएंट फॉर द बिजनेस? मतलब ठीक है, मतलब लेट बैक होके काम तो हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो अपने बेस पे बैठ के ही कर रहे हैं, वो आपके पेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो डू यू थिंक कि वो इतना करता है? इट ऑल रियली डिपेंड्स कि आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर लेट्स आपकी सपोज हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, कंटेंट क्रिएशन में तो 110% ना, 110% इट्स रियली इफेक्टिव। ठीक है, तो वही बात है, इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस अगर आपके पास एक हेल्दी मिक्स है ऑफ ब्रेन्स, you have young brains, you have the experience of older people, so then really you have a good team. Okay, so if we talk about someone who wants to start their own social media journey and start working on it, तो आप उनको क्या advice करेंगे या आप क्या कहेंगे ऐसा कि like you know it stays actually real instead for them to just be you know faking it? मतलब अगर मैं अपनी social media journey start करती हूँ and I'm like you know this is me blah 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 and this is my certain goal that I want to achieve and all of that, but how do I make it real instead of just being you know faking it around like just for the show kind of vibe कि अच्छा मैं तो मतलब you know मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, but essentially मैं कर नहीं रही हूँ, बट मैं दिखा ज़रूर रही हूँ ये चीज़। तो मैं अपना कंटेंट रियल कैसे रख सकती हूँ? बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट यू जेन्युइनली, बिकॉज इट नीड्स टू बी रिलेटेबल टू द ऑडियंस। जैसे अब हम स्टूडेंट्स हैं, वी वुड वांट टू सी समथिंग दैट्स रिलेटेबल लाइक द कंटेंट दैट चैप्टर 1 मेक्स, it's very relatable. So if someone is starting out as a content creator or someone who just wants to be in the industry or do something related to media, आप उनको क्या कहोगे कि like how can they keep it real? कोई भी क्रिएटिव फील्ड है ना, उसके अंदर परफॉर्मेटिज्म और परफेक्शनिज्म आपको कूट के मिलेंगे, और एवरी क्रिएटिव इज subject to perfectionism, even me myself, because I run a marketing agency, I work with, you've seen the influencers we work with, Yes. you've seen the brands we work with, तो एक बड़ा वो प्रेशर होता है कि यार जब मैं पोस्ट करूँ तो मैं परफेक्ट चीज़ पोस्ट करूँ। अब वो प्रेशर कभी भी नहीं जाता बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ भी, छोटे से छोटे उस इन्फ्लुएंसर के साथ भी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कीप इट इन द बैक ऑफ योर हेड कि यार पीपल विल फॉरगेट। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी 30 मिनट पहले आपने कौन सी चौथी रील देखी थी? यू डोंट नो, याद होगा, बिल्कुल भी याद यू डोंट नो, राइट? ऐसा ही है। तो like an average person, if they're consuming social media for 2 hours, scroll कर रहे हैं, तो they're seeing hundreds of pieces of content. They'll forget about yours like this. तो just post stuff. Like अब अल्हम्दुलिल्लाह I know कि अच्छा what will work, what will not work, but when मुझे नहीं पता था, when I was of your guys' age, I used to post like crazy. तो और don't get fixated on one post, जैसे आप कहते थे अच्छा मैं ये चीज़ दिखाऊं कि यार एंगल मेरा परफेक्ट हो, ये मेरे पौधे ऐसे पड़े हों, नहीं भी है तो खैर है, आप पोस्ट करो, आप सीखो उससे, ऑडियंस का फीडबैक लो, बिकॉज द फास्टर दैट यू टेक फीडबैक एंड वर्क ऑन दैट फीडबैक, द मोर यू इम्प्रूव। ठीक है, वन मेसी वीडियो इज फार बेटर देन 1,000 well planned video that you never बिल्कुल post. ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, and I think that's exactly what we've even done at chapter 1, because most of our videos that we used to film together वो सारी बहुत spontaneous होती थी, even if we were scripting, we were like you know planning things ahead and all of that, but still at the end of the day, like when we were making it, तो हमें पता था कि यार मतलब this is something that we're gonna portray and this is something that we're not gonna portray, but like you know also keeping it real in terms कि हम क्या कर रहे हैं। Lastly, I would like to ask you one piece of advice for someone who's starting out as a young entrepreneur, like you know how you started your chapter 1 journey and how can they maintain a good work-life balance and essentially not be too burnt out because of the work, you know, the hustle culture. You want the real answer? Yes, I want the real answer. Please, the real answer. देखो, स्टार्ट में अगर आप यंग हो तो भूल जाओ वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी लग्जरी है। आपकी जो जवानी है, इससे बड़ा एसेट कोई नहीं है। कल को आपके पास 50 करोड़ का कारोबार हो, ये जो आपके जो यंग ईयर्स है ना, मतलब 20 से 30 तक, दिस इज़ गोल्डन, स्पेशली जो आपकी यूनिवर्सिटी वाले ईयर्स हैं। आपके पास वंस यू मेक इट इन लाइफ, वंस यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आपको एक चीज़ें रनिंग में आ जाती हैं,
फिर यू कैन रेस्ट ऑल यू वांट, ठीक है ना, फिर यू कैन हैव ऑल ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, यू कैन डू व्हाटएवर। बट अगर आप अपने ये जो एसेंशियल ईयर्स हैं इसके अंदर आप वर्क लाइफ बैलेंस और अपना सुकून प्रायोरिटाइज करने बैठ जाएंगे ना, तो यू वॉन्ट अचीव एनीथिंग out of the extraordinary, because extraordinary results extraordinary results demand extraordinary effort. तो फर्स्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस आप भूल जाओ, इनिशियल प्राइम ईयर्स में तो फॉरगेट इट। भूल जाओ। जहाँ तक बर्नआउट की बात रह गई ना, तो बर्नआउट इज एसेंशियली लिटरली लाइक अ मसल। जब आप जिम जाते हो तो आप ट्रेन करते हो, मिसाल अगर आपने साल पहले शुरू किया था 10 किलो के साथ आप करते थे, आज आप 30 किलो के साथ कर रहे हो, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो एज यू learn how to handle stress, your capacity for burnout increases. जैसे जब मैंने शुरू किया था for one of my first businesses, तो एक क्लाइंट का कोई मसला आ जाना, I used to panic a lot. फिर जब टीम थोड़ी बड़ी हो गई, टास्क डेलीगेट हुए इन सब कुछ, ठीक है, फिर जब मतलब पहला लीगल एक इशू आया, आई रिमेंबर मेरे लिए ऐसे था कि इट वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अब ये सारी चीज़ें मतलब ऑन द डेली चल रही होती हैं रूटीन के अंदर, तो यू अडेप्ट टू इट आहिस्ता आहिस्ता, और अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस ऐसे ही बंदा बढ़ाता है। ये ज़्यादा ज़हन पे सवार ना करें कि बर्नआउट होना है, वर्क लाइफ बैलेंस। मैं थोड़ा सा जेनजी टच कम कर दे, आप एसेंशियली कहना ये चाह रहे हैं। सो आई थिंक दैट इट पुट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पर्सपेक्टिव नाउ, एंड आई थिंक के मतलब he just pretty much summed it up really well कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and we should focus on real growth instead of just acting that as if we are being productive. Thank you so much, Welcome. Zakias, for coming here and joining us for this podcast, and for everyone listening, we shall see you again in the next episode.